Hello friends, some questions in molecular basis of inheritance. First question asked in NEET 2016, DNA dependent RNA polymerase. It's an enzyme RNA polymerase and catalyzes transcription on one strand of the DNA which is called the. मैंने आपको बताया था कि DNA से RNA बनता है and this process is called as transcription. This transcription is mediated by RNA polymerase. So RNA polymerase loads on the template strand of DNA at a particular site, that is promoter. So it's the right answer, template strand of DNA. Next question asked in NEET 2019. Under which of the following condition there will be no change in the reading frame of following messenger RNA? तो यहाँ पर आपको मैसेंजर आरएनए का एक सीक्वेंस दिया है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम और पूछा है कि अगर म्यूटेशन हो जाता है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है फ्रॉम दीज 4 जहाँ पर म्यूटेशन हो जाए तो भी रीडिंग फ्रेम में चेंज ना आए. सो फर्स्ट चॉइस इज डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th एंड 9th पोजीशन. यहाँ पर क्या है कि अगर GGU का, दिस इज GGU, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इसका डिलीशन हो जाए तो कोई चेंज नहीं आएगा. इट्स राइट, क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट कोडॉन गायब हो रहा है, ट्रिपलेट कोडॉन का म्यूटेशन हो रहा है, दैट इज GGU. तो एक अमीनो एसिड क्या है कि कोड नहीं होगी बट द रेस्ट विल बी सेम. एंड सेकेंड चॉइस इज डिलीशन ऑफ G एट 5th पोजिशन. तो अगर ग्वानिन का डिलीशन होगा एट दिस 5th पोजिशन तो ऑब्वियसली चेंज आएगा बिकॉज ऑल द कोडॉन्स विल बी शिफ्टेड. Insertion or deletion of a particular base will change the reading frame. And fourth choice is insertion of adenine and guanine at 4th and 5th position respectively. तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर एक बेस का या दो बेस का म्यूटेशन हो रहा है तो इट विल चेंज द रीडिंग फ्रेम, बट चेंज ऑफ अ कोडॉन और म्यूटेशन इन अ कोडॉन मीन्स 3 बेस change will lead no change in reading frame. So first is the answer. Next question asked in AIPMT 2010. The lag operon consists of. Lag operon Jacob and Monod ने प्रपोज किया था and it consists 1 regulatory gene and 3 structural genes. Regulatory genes में आपके प्रमोटर, ऑपरेटर और इंड्यूसर होते हैं. इट इज सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन. और स्ट्रक्चरल जीन्स में होते हैं 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, Z, Y and A. And this Z codes for beta galactosidase, Y code for permease and A codes for transacetylase. तो यहाँ पर ये चॉइस है 1 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स. Next question asked in AIPMT 1993. Because most of the amino acids are represented by more than 1 codon, the genetic code is. जेनेटिक कोड के बारे में मैंने आपको बताया था 64 कोडॉन्स होते हैं एंड आउट ऑफ दीज 3 आर टर्मिनेटर्स और टर्मिनेटिंग कोडॉन जिनके बारे में बताया था UAA, UAG and UGA. These 3 are terminators. तो जो 61 कोडॉन्स बचते हैं, these 61 कोडॉन्स कोड फॉर अबाउट 20 अमीनो एसिड्स. तो one of the amino acid is represented by more than 1 codon and this is called degeneracy of the genetic code. Next question asked in AIPMT 1990. An octamer of 4 stones complexed with DNA forms. Stones क्या है? These are proteins which are rich in arginine and lysine. और ये stone proteins DNA के साथ में associated होती हैं because these neutralize the charge of DNA. Positively charged amino acids की बनी होती है stone proteins and these neutralize the negative charge of DNA.
तो ऑक्टामर ऑफ 4 स्टोन्स का मतलब है कि 8 स्टोन प्रोटीन्स, जैसे कि ऑक्टामर हो जाएगा 4 स्टोन प्रोटीन्स हैं जिनके नाम है H2A, H2B, H3 and H4. So each protein is present in 2, मतलब 2H2A, 2H2B, दो प्रोटीन्स एसोसिएटेड होंगी डीएनए के साथ में और ये बनाएंगी न्यूक्लियोसोम. Next question asked in AIPMT 2004. During replication of a bacterial chromosome, DNA synthesis starts from a replication origin site end. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की रेप्लिकेशन मशीनरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. एंड इन प्रोकैरियोट्स डीएनए सर्कुलर ऑफ विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स. तो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है from a particular site, it takes place in bidirectional way. So moves in bidirectional way. Next question, if the DNA codons are, ये DNA codons है ATG, 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 and the cytosine base is inserted at the beginning, then which of the following will result. यहाँ पर क्या है कि ये कोडॉन दे दिया है आपको जिसमें साइटोसिन बेस को स्टार्टिंग में इंसर्ट है. तो हम बनाते हैं, कैसे बनेगा, CAT, क्योंकि ट्रिपलेट में जाएगा CAT, देन GAT, अगेन GAT, और लास्ट आ जाएगा ये लास्ट वाला G. So it's the right choice. Next question, whose experiments cracked the DNA and discovered unequivocally that genetic code is a triplet. Genetic code triplet है, किसने बताया था? There were two scientists, Nirenberg and Matthey, who proved that genetic code is a triplet. Anticodon is an unpaired triplet of bases in an exposed position of. एंटीकोडॉन्स किसके साथ में पेयर करते हैं? विथ ट्रांसफर आरएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2017, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन्स H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट. न्यूक्लियोसोम क्या है? ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. न्यूक्लियोसोम में रहती हैं 4 हिस्टोन्स H2A, H2B, H3 and H4, जहाँ पर हिस्टोन H1 प्रोटीन्स एज ए लिंकर काम करती है फॉर जॉइनिंग दीज विद डीएनए, एंड दिस इंडिकेट्स दैट द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ बी डीएनए. तो डीएनए के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे जेड डीएनए, जैसे डीएनए हो गए जेड डीएनए, बी डीएनए एंड ए डीएनए, बट बी डीएनए इज द मोस्ट कॉमन टाइप. अच्छा, डीएनए इस तरीके से बना होता है 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है. तो इन स्ट्रैंड्स में बेस होंगी, तो 2 बेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज अबाउट 0.34 नैनोमीटर. But it is found that in a loop about 10 bases are found. तो 2 बेस के बीच की डिस्टेंस हो गई 0.34 नैनोमीटर, और अगर 10 बेस मिल रही है तो डिस्टेंस हो जाएगी 3.4 नैनोमीटर. सो वी कैन से दैट लेंथ ऑफ वन लूप इज अबाउट 3.4 नैनोमीटर.